आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक बहुत ही कूल पर्सनालिटी जिनका नाम है सुनील मंज. ही इज द फेस एंड द चेयरमैन ऑफ पार्क व्हील्स. कैसा फील कर रहे हैं? I really feel really good because जब भी मैं कराची आता हूँ I really love और ख़ास तौर पे कराची का आजकल वेदर बहुत मज़े का. आप आए, मौसम बेहतर हो गया एक्चुअली. हम साथ लेके आए लाहौर से मेरा ख्याल है बाहर. बेस्ट है. अच्छा, आपकी तो भाई बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है. देयर सो मेनी पीपल. यू आर द किंग पिन ऑफ द कार इंडस्ट्री इट सीम्स. लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. सो टेल मी अ लिटिल अबाउट योरसेल्फ. व्हाट इज पार्क व्हील्स? Basically वो मैं I'm not the kingpin. Is that the platform is helping people and we have been helping people for 21 years. So Parkwheel is the #1 classified website in Pakistan where people can come buy and sell their cars. Anything related to cars, if they have to get information for cars, so we do car reviews. So from the starting of the journey, if you have to ever buy a car, it will start from a research. So we provide you with the articles, we provide you with the reviews, so you can do your homework before buying a car. And once you have it researched to our classified, we are the first service in Pakistan for third-party inspection. So we have a service called car inspection service. So whenever you have to buy a car, आप गाड़ी select कर लेती हैं, then you can get it certified by Park Wheels. उसको आप check करा लें, and then e-commerce of parts. So there is an array of service that we provide. And from day one, our aim has to revolutionize the way people buy and sell cars. And that's what we have been doing, and that's why people love Park Wheels, and I being the face of Park Wheels, I'm the recipient of that love, and I'm thankful to God, and I can't thank enough for the love people give to us. That's amazing. आप बहुत amazing content भी create करते हैं. You're a YouTube sensation. कितने लोग आपको follow करते हैं? And you know, before you even came to the show, इतनी hype थी कि oh my God, Park Wheels and this and that. Would you like to tell me आपने ये start कैसे किया? आपकी पहली गाड़ी कौन सी थी? Park Wheels was started back in 2003 by our co-founder Haneef Bhatti साहब, और it was just started as a hobby कि आपको गाड़ियों का शौक है. It was the first social media platform in Pakistan well before any other platform. तो लोगों like minded लोगों को इकट्ठा करते थे, गाड़ियों के बारे में डिस्कशन करते थे. Soon it got traction into the market, और आहिस्ता आहिस्ता मैंने आपको सर्विस बताई, वो ऐड होती गई. Talking about myself, I have been a car buff since I was a child. मेरे वालिद साहब को शौक था, inherited from him. And my first car was when I went to college. My father asked me to go to a certain college, then I'll get you a car. So it was a Lancer at that time. It was 1990 model, and I bought it in 1995. So did you pimp up your ride at that time as well, back in what it? Yes, I did. उस ज़माने में म्यूज़िक सिस्टम्स का बहुत शौक होता था, और जो थोड़ा बहुत आप व्हील्स के साथ पंगे ले सकते थे. आज जिस लेवल की मॉडिफिकेशन होती है वो नहीं थी, बट yes, I did try my best. अच्छा, and music and cars go hand in hand with you, does it? Yes. आप म्यूजिक भी उतना ही enjoy करते हैं? बिल्कुल. I think a car without a good sound system is useless. Absolutely, that's great. मुझे अपनी कार अपग्रेड करानी है, so how would you help me? देखिए, इस नंबर गेम की गेम है. अगर इंडिविजुअली हर बंदे को तो नहीं बता सकते, एंड दैट्स द यूज़ ऑफ पावर ऑफ सोशल मीडिया कि आप एक वीडियो बनाते हैं और जितने लोग पाकिस्तान में हैं, so 60% ऑफ इंटरनेट पॉपुलेशन विजिटर्स लास्ट ईयर, तो उन सब को आपने इन्फॉर्मेशन देनी है. इट्स ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड कार इज़ अ वेरी हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट. फॉर मोस्ट ऑफ द केसेज इज द मोस्ट हाईएस्ट परचेज एवर इन योर लाइफ. सो वी ट्राई टू बी एज ऑब्जेक्टिव एज वी कैन बी. हम उसके बड़ा क्लियरली उसको पहले मैं हर गाड़ी को चलाता हूँ खुद. वी हैव सेट सर्टेन पैरामीटर्स कि हमने इतने किलोमीटर्स चलाना है शहर में, लॉन्ग पे, एंड देन वी गिव एन इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ दैट कार. एंड वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर ऑलमोस्ट लाइक 8 to 10 years now. एंड ऑल आर जितने भी हमारे अभी तक हुए में रिव्यूज़ आप जाके देख सकते हैं, लोगों को इंटरव्यू कर सकते हैं कि जो फॉल्ट्स हमने बताई थी वो गाड़ी में है या नहीं है. तो इसकी वजह से आई थिंक द क्रेडिबिलिटी एंड द ट्रस्ट पीपल हैव इन अस इज ड्यू टू द ट्रैक रिकॉर्ड वी हैव, and we have been helping people to choose their next car. And if you have to choose your car, you don't have to directly message me. You just go to our YouTube channel and just start surfing there. Amazing. तो आप मुझे कुछ बताएंगे about the petrol prices and the car prices in the coming year? मुझे like let's say अगर मुझे change करनी है, हमारी audience में किसी को change करनी है, how would you guide them? I think in Pakistan, the simple formula to buy a car that you can never go wrong buying any zero-meter car any day in Pakistan, because with the depreciating currency we have, every year the cars are going to be expensive. Okay. So इसमें कोई rocket science नहीं है. आप जिस दिन जो गाड़ी खरीद लेंगे वो सस्ती है. Petrol prices always have been on a higher side. When I started driving, it will reveal my age though, but I remember getting petrol at rupees of 7 rupees per liter and diesel was 4. Oh my. So now it's somewhere 270 and 290. So it has to go up anyways. तो पेट्रोल और गाड़ी की प्राइसेस तो कभी कम नहीं होनी. सो हमारे मुल्क में हमेशा लोग कहते हैं आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, मैंने किसी से वोट नहीं लेता. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि आंसर इज दे विल नेवर कम डाउन. तो आप क्या recommend करेंगे हमारी audience को? Let's say if I want to change my car next year, तो what do you think I should do? एक चीज़ जो हमारे यहाँ पे बहुत है कि लोग अपने बजट से ज़्यादा जाके गाड़ी देखते हैं, बेशक उसकी कंजम्पशन हो, बेशक उसकी, बट आई थिंक वंस यू आर बाइंग अ कार, 2-3 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो मैंने आपको बताया कि हमने इंस्पेक्शन सर्विस बताई है कि आप इंस्पेक्शन कराएं गाड़ी की. दूसरा, उसके डॉक्यूमेंट जो है ना वो पाकिस्तान में सब सोनली आपकी जिम्मेदारी है. इवन गवर्नमेंट जो रजिस्टर करके देखती है उस पर लिखा होता है प्रोविजनली रजिस्टर्ड, आरजी तौर पर रजिस्टर किया गया. सो इट्स यूर ऑन योर ओन.
सो यू डोंट वांट टू लैंड अप विद समथिंग विच इज़ लीगली नॉट गुड. सो सबसे पहले उसका लीगल जो है वो चेक ज़रूरी कर लें, गाड़ी की रोड वायबिलिटी के लिए इंस्पेक्शन करा लें, एंड कोशिश ये करें कि अगेन डोंट स्ट्रेच टू फार, अपने बजट से बहुत ज़्यादा बाहर ना जाएं, बिकॉज आप एक दफ़ा तो ले लेंगे बट जो उसका एवरीडे कॉस्ट है, जैसे मैंने बताया पेट्रोल की प्राइसेस इज ऑन एवर इंक्रीज, तो वो आपके फिर अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो जाएंगी, तो फ़ायदा कोई नहीं. अच्छा, one thing I do want to say as well is कि I think पाकिस्तान में I mean having to live, मैं बाहर ही रही थी, और बाहर अगर आप रहते हैं तो वहाँ की रोडें बहुत डिफरेंट होती हैं. पाकिस्तान में रोडें बहुत, डू यू थिंक दैट मेक्स अ डिफरेंस टू द कार ड्यूरेबिलिटी एज वेल, एंड जिस तरह वो रन हो रही है, फ्यूल कंजम्पशन एंड एवरीथिंग, आप ये सब मद्देनजर रखते हुए एडवाइस करते हैं कि द कार्स की वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा है यहाँ there are पे, two- बारिश हुई खड्डे बन गए. बिल्कुल सही. या सो देयर आर टू पार्ट्स. एक तो रोड्स की अगर बात करें तो आई थिंक जो हमारे रोड्स का साइज़ है, Yeah. आई विल बी वेरी फेयर, बाहर के बहुत से मुल्कों से बहुत बेहतर है अगर चौड़े होने की बात करें. बट वो आपकी वाली बात कि पॉट होल आ जाएगा, कहीं सड़क पूछ जाएगी, फिर एक महकमा आके खोद देगा, दूसरा खोद देगा, तो उसके लिहाज से आप जिस सिटी में हैं उसके लिहाज से आपको अपनी गाड़ी की चॉइस करनी पड़ेगी. और अगर आप जनरली भी पाकिस्तान में देखें, बिकॉज आई ट्रैवल अलॉट थ्रू आउट पाकिस्तान, तो हर इलाके की एक अपनी चॉइस है. तो इफ़ यूर इन कराची, पीपल प्रेफर जीज, बिकॉज यहाँ पे रोड कहीं है कम है, खड्डे ज़्यादा हैं. अगर आप पंजाब वाली साइड पे जाएँ, वहाँ पर ज़्यादा रोड नहीं बनी है, तो पीपल प्रेफर सेडान, जिस तरह, तो वो अपने इलाके के लिहाज से होता है. बट जनरली येस, यू राइट कि वेयर एंड टेयर भी बढ़ जाती है और फिर उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाती है. तो दैट्स व्हाई आई टेल पीपल कि जब आप जिस इलाके में होते हैं Yeah. तो उसको देख के फिर अपनी गाड़ी उस लिहाज से. हाँ, बट यहाँ पे तो कराची में तो हर इलाके में यही हाल है. आई थिंक रोडों का तो मेरे ख्याल से मैं अभी थोड़ा वेट ही कर लूँ. इसीलिए अगर आप देखें कि जनरली लास्ट फ्यू इयर्स में क्रॉसओवर्स की मार्केट जो है वो ज़्यादा चल रही है. यस यस एब्सोल्युटली. तो फिर अब आप मुझे बताएंगे कि लेट्स से लाहौर, कराची, यू डू इन इस्लामाबाद एज वेल. या ओके, सो व्हिच सिटी डू यू थिंक आपसे सबसे ज़्यादा आपको रिस्पांस मिलता है इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप, लाइक्स, फीडबैक? अच्छा, इसमें वैसे वी नॉट ओनली इन लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इवन अगर पाकिस्तान से बाहर भी जाएँ अच्छा. तो वी हैव लाइक कितने क्रेजी फॉलोअर्स फॉर कार्स का स्पेशली, और पार्क व्हील्स के लिए भी. तो वी गेट आई एम सरप्राइज, मैं कहीं भी जाता हूँ पाकिस्तान से बाहर भी जाऊँ, पाकिस्तान में तो इज देयर पीपल आर इक्वली क्रेजी फॉर कार्स. एंड अगेन मैं कहता हूँ आई एम थैंकफुल इनफ टू गॉड कि I don't think I have such any such talent, but it's being associated to Park Wheels makes Just me being humble. You do have a नहीं, talent. वो मैं आपको बता रहा हूँ, गाड़ी हर बंदे को शौक है. So being associated to Park Wheels, being face of Park Wheels gives me an added advantage and benefit. अच्छा, आपको क्या लगता है इलेक्ट्रॉनिक कार्स का बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रेंड अब हो गया है जनरली, तो आप क्या उसके बारे में अपना फीडबैक देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस? अच्छा, वर्ल्ड वाइड तो बड़ा इसमें वो है कि इलेक्ट्रिक कार्स बहुत आ रही हैं, बट आई थिंक फॉर पाकिस्तानी मार्केट इट्स मोर ऑफ अ फैक्ट. Because I'll be very honest with you, I'm not that optimistic about the electric cars per se. So if we have to bring, if we talk about automotive, generally के electric cars के अलावा electric bikes भी होती हैं. Yeah. So if electric revolution has to come to Pakistan, it will come through two-wheelers and three-wheelers. Because the total population of electric cars in Pakistan is close to 1400 only, out of which 1200 is of the premium brand, और वो भी इसलिए लोग मंगाते हैं कि वो प्राइस में 1/4 कॉस्ट कर रही हैं. So there is no economies of scale in that sense. But two-wheeler और three-wheeler में है, and I think that is a way to go, and I urge government also to promote two wheelers and three wheelers, because जो आपका हम हर वक्त होते रहते हैं कि ये जो है डॉलर जो है महंगा होता जा रहा है, आपका जो इंपोर्ट बिल है उसका 60% जो है वो आपके फ्यूल पे लगता है, एंड दैट फ्यूल बिल जो है उसका भी 60% जो मोटरसाइकिल्स पे लग रहा है. सो इफ वी कैन समहाउ कन्वर्ट टू व्हीलर्स टू इलेक्ट्रिक, देन दैट इज अ रेवोल्यूशन. दैट इज ग्रेट. अच्छा, इलेक्ट्रिक कार्स का भी तो वेयर एंड टेयर होता है, उनका भी अगर कोई पार्ट खराब हो जाए तो इज इट जस्ट एज टीडियस टू गेट इट फिक्स्ड like it is for normal cars? So there are no moving parts as such because there is no engine. So कोई maintenance नहीं है, but उसकी अभी because it's a new subject, तो यहाँ पे आपको जो उसकी कोई भी wear and tear अगर हो जाती है तो people have to fly their cars to different countries to get them fixed. Yeah. And having said that, पाकिस्तान में भी 2-3 बड़ी कंपनीज लेके आ रही हैं, बल्कि इसी महीने में आ रही हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों की. बट आई थिंक जो पेस जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बाहर में है पाकिस्तान में, वो जो एडेप्शन कर्व टेक्नोलॉजी का तो बहुत स्टीप है, लेकिन आई डोंट थिंक कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंड्यूसिव है. अच्छा. लेकिन हमारे यहाँ पे तो मोबाइल चार्ज करना तो पता जाता है, बिजली आ रही नहीं आ रही, तो एवरेज हाउस होल्ड, खासतौर पे कराची में अगर आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लेते हैं और आप अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते हैं तो वे विल रिपोर्ट द चार्ज. सो दीज आर द लिमिटेशंस व्हिच वी हैव, एंड आई थिंक कि हमारे जो इलेक्ट्रिक एडॉप्शन कर्व है वो थोड़ा स्लो होगा. जब आप गाड़ियाँ रिव्यू कर रहे होते हैं तो आप किस तरह सेलेक्ट करते हैं? व्हाट्स योर सिलेक्शन प्रोसेस? देयर आर टू टाइप ऑफ क्राइटेरिया. एक तो ये कि देखिए सिंपल सप्लाई एंड डिमांड है, जो लोकल मार्केट में गाड़ी आने वाली होती है या आ रही होती है जो एंटिसिपेटेड है, एक तो वो करते हैं. दूसरा, एक हम जितने भी हमारे, मैंने आपको बताया था कि पार्क व्हील्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि वी आर द क्लोज नेट कम्युनिटी ऑफ ऑटो लवर्स, तो हमारे पता होता है कि किसके पास कौन सी फैंसी गाड़ी है. एंड गाड़ी का पैशन जो मैं हमेशा कहता हूँ, इट्स नॉट रिलेटेड टू मनी डायरेक्टली, बट इट्स हाउ यू कीप योर कार. सो वी ट्राई टू शो पीपल कि आप पुरानी गाड़ी को भी कैसे संभाल के रखते हैं. वी डू गैरेज टूर्स, वी डू रिव्यूज़. सो उसमें हम फिर सेलेक्ट करके वो लोगों के पास लेके आते हैं जो वेल मेंटेन गाड़ी.